A very good morning to each and everyone present here. As I have been taking a very important topic, that is fracture. As you all know that I have started making videos in Instagram as well as in your image based question, case discussion, MCQ discussion in my Instagram. Keep following me in there, as well as I am making videos in YouTube that is totally image based, but I am taking the fracture in a classroom classes because it's a very important topic, right? So what is fracture? First of all, as a dentist or as a dental surgeon, we have to know that what is fracture. Fracture is any break in continuity of the bone. See, I have made two types of break in continuity. Okay, this type of means questions came in my mind. That's why I am discussing that with you all. This is also a break in continuity, and this is also a break in continuity. So this is not a break in continuity because it not caused due to any injury or force. And here one bone end and second bone starts. It's a joint. But here there is force is applied or any injury has been taken place, and that causes your break in continuity. That may be a hairline, that may be a bend only, or there may be a avulsion. Means the complete removal. So what fracture is telling us this is this. Okay, so break in continuity of the bone is known as your fracture. Fracture can be in any places. Okay, fracture can be in any places. It may be, even in depressions, we automatically get a fracture in our skull in the inward direction. So it is very important to discuss what are the types. So the types of fracture. Types of fracture are: first, avulsion; second, comminuted fracture. Okay. Your name is suggesting what type of fracture is there. Otherwise, I will explain you what type of fracture it is all. Okay. Third is of your displaced. Third is of your displaced. Fourth is the green stick. Green stick. Fifth is your impact. Fifth is your impact. Then your interarticular. Interarticular. Longitudinal. Oblique. These are the main fractures we can see in bones, okay, as well as in our face bones also, in jaws also, okay. Other than this, there are other fractures that are spiral fracture, that is your spiral fracture, transverse fracture, okay, then stress fracture, as well as hairline fracture. So I will discuss it one by one. Okay. So in this lecture we will be discussing about what is fracture, types of fracture, your pathphysiology of fracture, as well as the healing of fracture, as well as the common clinical features. Only this I will discuss in this video. I want to make the fracture in a fragment wise, so it is easy to understand for us. As well as in the next lecture I will be discussing about the mandibular fracture. So let's see what the avulsion fracture says that. For example, ये मेरा बोन है और बोन में हम लोग का फोर्स लगने के कारण क्या हुआ, पूरा एक बोन यहाँ से निकल गया, ठीक है, पूरा डिस्प्लेस हो गया, या फिर आप ये बोल सकते हो पूरा एक निकल गया. दैट इज avulsion. Avulsion of the tooth होता है ना, तो avulsion fracture. Okay. As well as how it causes. It causes due to pulling. स्ट्रॉन्ग पुलिंग के कारण हम लोग का एवल्जन होता है. नॉर्मल एक्सीडेंट्स या समथिंग में इसमें हम लोग का एवल्जन नहीं होता है. किसी भी फोर्स जो कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग पुलिंग कर रहा है उसी में हम लोग का एवल्जन होता है. नाउ कम्युनेटेड फ्रैक्चर मतलब कोई एक एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट गिर गया किसी भी पैर के ऊपर या फिर फेस के ऊपर, तो एक साथ बहुत सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं बोन के. दैट इज योर कम्युनेटेड फ्रैक्चर. ओके.
as well as the comminuted fracture is also called as when a bone break into 2 or more pieces. जब हम लोगों का बोन 2 से ज्यादा पीसेस में डिवाइड होता है तब हम लोग उसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं. थर्ड, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. जैसे कोई 2 बोन्स है और उसने अपना पोजीशन ही चेंज कर लिया है. जैसे मेरे 2 बोन्स अगर ऐसे थे तो फ्रैक्चर होने के बाद मेरे ऐसे हो गए, या फिर अगर ऐसे थे तो पूरा ऐसे हो गया. ठीक है, तो अपना पोजीशन, व्हेन अ फ्रैक्चर कॉज इन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन और द ब्रोकन फ्रैगमेंट्स इज नोन एज योर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. देन कम टू योर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. व्हाट इज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में कोई भी फ्रैगमेंट ब्रेकआउट नहीं होता है. ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग के चिल्ड्रन में होते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन में हम लोग का ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन सिर्फ बेंड होता है, टूटता नहीं है. ठीक है, नाउ कम टू स्पाइरल फ्रैक्चर. हम लोग का स्पाइरली ये फ्रैक्चर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बोन है, बोन में ना ऐसे करके ये फ्रैक्चर हुआ है, तो स्पाइरली अगर मेरा फ्रैक्चर होता है तो दैट इज नोन एज योर स्पाइरल फ्रैक्चर. देन कम टू योर इम्पैक्ट फ्रैक्चर. It is also a type of comminuted fracture in which more than one fragment are driven into another. ये भी हम लोग का एक से ज्यादा पीस होता तो है पर एक के ऊपर एक पीस आ जाता है. ठीक है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, ये भी हम लोग का कम्युनिटेड फ्रैक्चर ही होता है और एक फ्रैगमेंट के ऊपर दूसरा फ्रैगमेंट ऐसे करके अटैच हो जाता है. ठीक है, एक फ्रैगमेंट के ऊपर दूसरा फ्रैगमेंट. इट इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट फ्रैक्चर. नाउ कम टू योर इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर. इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर जब हम लोग का when the fracture is extending to the articular bone, that is known as your articular fracture. Longitudinal fracture, the name suggests longitudinal fracture is in longitudinal way, oblique fracture and transverse fracture. Okay, now come to your transverse fracture. Transverse fracture में एक चीज मेरे को बोलना है कि transverse fracture जो होता है ना वो हम लोग का राइट एंगल में होता है. जो हम लोग का जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है वो हम लोग का राइट एंगल में होता है. ओके, नाउ कम टू योर हियर लाइन फ्रैक्चर. हियर लाइन फ्रैक्चर नॉर्मली हम लोग को होता है जैसे कहीं पे हम लोग को मोच आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, किसी भी चीज में हम लोग ने भारी ऑब्जेक्ट उठा लिया तो बोन्स में हम लोग का एक हियर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है. डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, बस स्टेबलाइजेशन करने से ही ये ट्रीट हो जाता है. स्ट्रेस फ्रैक्चर. स्ट्रेस फ्रैक्चर में किसी भी टाइप में हम लोगों ने स्ट्रेस दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा हाथ फ्रैक्चर है ऑलरेडी, मान लो कि ये मेरा फ्रैक्चर और हियर लाइन फ्रैक्चर है, इसमें सिर्फ मैंने स्टेबलाइजेशन दिया है और मैंने कुछ भी नहीं दिया है. पर क्या किया मैंने, वही उसको मैं स्टेबलाइज नहीं करके मैं कोई ऑब्जेक्ट उठा रही हूँ या मैं कहीं पे जा रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ उसी फिंगर से, तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर उसमें हम लोग का स्ट्रेस लग रहा है और स्ट्रेस लगते लगते ये इट टर्न्स इनटू अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर और द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. दैट इज योर स्ट्रेस फ्रैक्चर. नाउ वन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज मोर, दैट इज अ डिप्रेशन फ्रैक्चर. When a person goes into a very depressive mode, हो सकता है हम लोग के स्कल्स में इनवर्ड में हम लोग का डिप्रेसिव फ्रैक्चर भी शो हो सकता है. ओके, नाउ कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, देखो अगर हम लोगों का कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज योर ओपन फ्रैक्चर एंड योर क्लोज्ड फ्रैक्चर. जस्ट राइट इट. Okay, so communication and non-communication to the external environment. It is of 2 types. Okay, one is your open, one is your closed. Okay, by this also we can divide the fractures into. After this we are dividing your pathphysiology. We are telling about the pathphysiology. That is a very important. See, might it not come into the exam, but as a doctor it is very important to learn about your pathphysiology. Okay, of the fracture. What happens is, first of all, disruption of muscles from bone. सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि ये अगर मेरा बोन है तो बोन से ना जैसे फ्रैक्चर हुआ तो क्या होता है कि मसल्स का हम लोग का डिसरप्शन हो जाता है. ठीक है, तो मसल्स हम लोग का सबसे ज्यादा पहले हम लोग का डिसरप्ट होता है.
सेकेंड, मसल अंडरगो स्पैज्म एंड पुल द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट इनटू द पोजीशन। और यही मसल क्या करता है, हम लोग का स्पैज्म शो करता है, जो कि हम लोग का जो फ्रैक्चर है उसको हम लोग का क्या करता है, पुल करता है, उसको हम लोग को क्या करता है, हम लोग का पुल करता है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इन रियल लाइफ कि रियल लाइफ में कैसे चलो। सबसे पहले हम लोग का डिसरप्शन हुआ, डिसरप्शन से स्पैज्म, स्पैज्म पे मसल ने क्या किया, फ्रैक्चर को पुल करने का कोशिश किया। पुल करने के बाद जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है वो हम लोग का डिस्प्लेस हो जाता है। अब जो फ्रैक्चर का जो फ्रैगमेंट्स है, जो फ्रैक्चर जो फ्रैगमेंट है वो या तो मेरा डिस्प्लेस हो जाता है या फिर मेरा रोटेट हो जाता है। ठीक है, या तो मेरा ये डिस्प्लेस हो जाता है या तो मेरा ये रोटेट हो जाता है। नाउ पेरियोस्टियम और ब्लड वेसल्स इनटू द कॉर्टेक्स एंड मैरो ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन इज डिसरप्टेड। अब इसमें हम लोग का जो पेरियोस्टियम है और जो ब्लड वेसल्स है, पेरियोस्टियम और जो ब्लड वेसल्स है वो हो जाता है हम लोग का डिस्टर्ब। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, फिर क्या होता है हम लोग का ब्लीडिंग होता है, और फिर क्या होता है हम लोग का हेमाटोमा होता है। पहले हम लोग का ब्लीडिंग होता है तो हेमाटोमा होता है। तो फिर से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये बोन है, बोन क्या हो गया, हम लोग का टूट गया, टूट गया तो क्या हुआ, इसके जो मसल्स है ना, मान लो ये मसल्स है, तो मसल्स हम लोग का ना पुल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये पुल करना शुरू कर दिया, ये ऑलरेडी है, ये पुल करना शुरू कर दिया, तो ये तो नहीं रहेगा, ये मान लो कि पुल करना शुरू कर दिया तो ये या तो यहाँ से निकल जाएगा या तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर ये क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा। जैसे ये ऐसे करके रोटेट हो जाएगा, जैसे लटकता है ना धागे में कोई चीज, तो वैसा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें जैसे मान लो ब्लड वेसल्स है, सारे ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, और फिर क्या होगा, इसमें हेमाटोमा हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें हेमाटोमा हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू गिव अ ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। ओके, सो दिस इज द पैथफिजियोलॉजी। नाउ कम इनटू योर फ्रैक्चर हीलिंग, कि हीलिंग कैसे होता है। प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं। कैसे सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रैक्चर है, वो मैं पर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोगों का फ्रैक्चर हीलिंग में। फ्रैक्चर हीलिंग क्या बोल रहे हैं कि इसमें हम लोगों का क्या होता है, जो हेमाटोमा है, जो हेमाटोमा है उसमें हम लोगों का ग्रैन्युलेशन टिश्यू का, उसमें हम लोगों का ग्रैन्युलेशन टिश्यू का क्या हो जाता है, हम लोग का डिपोजिशन हो जाता है। अरे कहीं पे भी हम लोग का इंजरी होगा तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू डिपोजिट होगा ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, हम लोग का ग्रैन्युलेशन टिश्यू का हम लोग का डिपोजिशन हो जाता है। और फिर क्या होता है, इसमें हो जाता है मेरा फैगोसाइटोसिस। जितने भी डेब्रिस है या जितने भी ब्लड क्लॉट है, ये सारे मेरे फैगोसाइटोसिस होना शुरू हो जाता है। फिर मेरे यहाँ पे लोकल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, फिर मेरे यहाँ पे लोकल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। लोकल नेक्रोसिस होने के बाद इसमें केलस फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, मेरा केलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इसमें ना 3 to 17 डेज लगता है इसको करने में। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, हम लोग का केलस फॉर्म हो जाता है। केलस फॉर्म में क्या क्या चीजें होती है, मिनरल्स होता है, प्लस हम लोग का न्यू बोन का डिपोजिशन हो जाता है। मिनरल्स हो जाता है और क्या हो जाता है, हम लोग का न्यू बोन का हम लोग का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, अब केलस फॉर्मेशन के बाद हम लोग का कौन सा स्टेप आता है, हम लोग का ऑसिफिकेशन। केलस फॉर्मेशन के बाद हम लोग का क्या आता है, हम लोग का ऑसिफिकेशन, और ऑसिफिकेशन के बाद आता है हम लोग का कॉन्सोडिलेशन। योर कॉन्सोडिलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ। इसमें भी हम लोग का केलस फॉर्मेशन ही होता है, जो कि हम लोग का सेकेंडरी होता है, क्या होता है, सेकेंडरी होता है। कॉन्सोडिलेशन के बाद हम लोग का लास्ट मेथड होता है, दैट इज नोन एज योर रीमॉडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का ग्रैन्युलेशन टिश्यू डिपोजिशन शुरू हुआ, ब्लीडिंग हुआ, ग्रैन्युलेशन टिश्यू डिपोजिशन शुरू हुआ। बॉडी नहीं चाहता है किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को रखना। फैगोसाइटिस क्या, एरिया को क्लीन किया, तो क्या हुआ, जो भी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम लोगों का केलस फॉर्मेशन, न्यू बोन मटेरियल, वो सारी चीजें हम लोग का डिपोजिशन होना शुरू किया। अब रास्ते में पत्थर बिछा देंगे तो बनना तो नहीं शुरू हो जाएगा ना, उसको उसके फॉर्मेशन में ढालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग का क्या हुआ, ऑसिफिकेशन हुआ। अब ऑसिफिकेशन करने के बाद ऊपर से एक हम लोग का पॉलिशिंग चाहिए, तो फिर हम लोग का सेकेंडरी केलस फॉर्मेशन या फिर कॉन्सोडिलेशन हुआ, और कॉन्सोडिलेशन के बाद हम लोग का क्या हुआ, रिमॉडलिंग। जो भी एक्स्ट्रा बोन है, एक्स्ट्रा मटेरियल सब कुछ रिमूव करके पूरा पोजिशन में हम लोगों ने कर दिया, तो वो क्या हो गया, हम लोग का रिमॉडलिंग हो गया। ठीक है, so here I end up the first lecture on fracture. In the second lecture I will be discussing about your mandibular fractures.